Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests, esteemed colleagues, and members of the media. It is with great pleasure and immense pride that I stand before you today to share an exciting milestone in our journey, the successful completion of the clinical study for our innovative Ayurvedic treatment for arthritis, Amrutnoni Orthoplex. At Value Products Private Limited, our mission has always been to harness the wisdom of traditional Ayurvedic medicine and combine it with the rigor of modern scientific research. We believe in the power of nature to heal and restore balance to the body, and today's achievement is a testament to the effectiveness of this approach. Arthritis is a debilitating condition that affects millions of people worldwide. It causes severe pain, inflammation, and a loss of mobility, which can significantly reduce an individual's quality of life. While conventional treatments have made strides in addressing some of these symptoms, many patients are still in search of more sustainable, natural, and holistic options. This is where our product, Amrutnoni Orthoplex, comes into play. Over the past years, our team has worked tirelessly to develop a solution that is not only effective but also aligns with our philosophy of promoting wellness through natural means. Today, I am pleased to report that the clinical study conducted for Amrutnoni Orthoplex has yielded remarkable results. The study, which included 120 patients suffering from gout, osteo, and rheumatoid forms of arthritis, demonstrated a significant reduction in joint pain and inflammation, as well as a notable improvement in mobility and daily functioning. These outcomes affirms our belief that Ayurvedic treatments, when scientifically validated, can provide patients with a safe and effective alternative to conventional therapies. Furthermore, the study highlighted the excellent safety profile of Amrutnoni Orthoplex with no adverse effects observed. This is particularly important for our patients as it ensures that they can't trust this treatment not only for its effectiveness but also for its zero side effects and natural approach. While today is a moment to celebrate, this is just the beginning of an exciting journey. The completion of this clinical study is a key milestone in our research department. Our commitment to improve the lives of people suffering from arthritis is stronger than ever. This clinical success only strengthens our resolve to continue researching, developing, and bringing further more Ayurvedic solutions that offer both safety and effectiveness. At this point, I would like to express my deepest gratitude to all the patients who participated in this clinical study. Your courage and trust have been instrumental in the success of this project. We also extend our heartfelt thanks to doctors, healthcare providers, our research team, and everyone involved in this clinical trials for their dedication, expertise, and hard work. Without your contributions, we would not be standing here today. Thank you all for your continued support, and we look forward to working together to bring better health and well-being to people around the world. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Speech, and now it's my pleasure to introduce Dr. Sandeep Benkel, BMS DND, Head of Department of Amrutnoni Healthcare. Dr. Benkel is a distinguished expert in holistic health solutions with a focus on arthritis management. He has been instrumental in advancing clinical research on Amrutnoni Orthoplex, a product designed to elevate joint inflammation and improve quality of life for arthritis patients. Ladies and gentlemen, put your hands together and join me in welcoming Dr. Benkel to share his expertise on arthritis and benefits of Orthoplex.
and the clinical research supports in efficacy. Ladies and gentlemen, put your hands together. Ladies and gentlemen, come on, तालियां बजती रहनी चाहिए. थोड़ा डाउन लग रहा है मुझे. हाँ, can I request? I'll say 1 2 आपको 3 पे क्लैप करना है. 1 2 स्नैप होगा. स्नैप. हाँ, 1 2 पे स्नैप होगा. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 faster. 1 2 3 1 2 3 1 2. बीच में मुझे जगाना पड़ रहा है आप लोग को. Well, ladies and gentlemen, put your hands together for Dr. Bengal. Come on, तालियां जोरदार बजनी चाहिए everybody. मुंबई झाल्यासारखं वाटत नाहीये. म्हणजे आम्ही बँगलोरहून आलोय. किती जण? हाऊ मेनी? आज हम आर्थराइटिस के बारे में और आर्थो प्लस अमृत आर्थो प्लस के बारे में प्रेस मीट कर रहे हैं. तो यूजुअली ये प्रेस मीट क्यों करते हैं, क्या हुआ है, तो सबको रहता है ना, व्हाट यू मीन बाय क्लिनिकल ट्रायल्स, क्यों किया है, आर्थराइटिस के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है इस मेडिसिन से. तो ये सब जानने के लिए हमको लगता है ना क्या हुआ है एक्चुअली, प्रेस मीट क्यों हो रहा है. तो क्लिनिकल एस्पेक्ट से हमने देखा तो आर्थराइटिस बोले तो सबको पता है संधिवात, नहीं तो घुटनों में दर्द, सब कहाँ जॉइंट रहते हैं ना उधर दर्द शुरू होता है. तो यूजुअली अभी तक कॉन्सेप्ट रहता था, सो 40 इयर्स होने के बाद आर्थराइटिस होता है. तो यूजुअली सब होते हैं 40 इयर्स हो गया, आपका घुटनों में दर्द शुरू हो गया, सो शोल्डर का पेन हो गया, तो सब जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, ये सब सुनते रहते हैं. सो इंसिडेंट्स देखते देखते जो है तो लास्ट 10 इयर्स में ये आर्थराइटिस ऑलमोस्ट क्रॉसिंग द ऑल डिसीजेस. इसलिए पहले बोलते थे कैंसर बहुत बड़ा बीमारी है तो उसको ये होता है, नेक्स्ट डायबिटीज़ आया, हार्ट का प्रॉब्लम आया, अभी आर्थराइटिस के अंदर. तो यूजुअली क्या होता है, ये आर्थराइटिस इट इज़ नॉट लाइक अ फेटल कंडीशन. ये आ गए तो कुछ जान के लिए तकलीफ होता है, तो इट्स अ डेडली डिसीज ऐसा नहीं बोल सकते, मगर डेडली पेनफुल करता है. तो क्या होता है, कभी भी देखिए आर्थराइटिस हुआ तो वो पेशेंट हाफ आइसोलेट हो जाता है सोसाइटी से, क्योंकि उसका पेन इतना इंड्यूस रहता है, वो सोशल हो ही नहीं सकता है. कहाँ गया तो उसका दर्द ज़्यादा होता है, कुछ फंक्शन के लिए गया तो नहीं आऊँगा, मेरे घुटने में दर्द होता है, चलने के लिए नहीं होता है, बैठने के लिए नहीं होता है. सो इट इज़ मेकिंग हिम टू आइसोलेशन विथ सोसाइटी. सो क्या होता है, ये फिजिकल बीमारी रहते हैं ना, उसको हम दूर कर सकते हैं. कभी इस मेंटली वो उसका साथ जुड़ गया तो सो दैट बिकम्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स. सो अभी क्या होता है, आर्थराइटिस सब लोगों को पहले 40 बोला तो अभी वेराइटीज ऑफ आर्थराइटिस आ गया है. लाइक हमने मेडिकली हमने डिस्ट्रीब्यूट करते गए तो हमको लगता है मोर देन 100 आर्थराइटिस वी हैव एट प्रेजेंट. सो डिफरेंट कॉज से आता है. वायरल आर्थराइटिस बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, सो ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर्स का आर्थराइटिस बोलते हैं. सो इट इज़ ऑल कॉजेटिव फैक्टर्स अलग अलग रहता है, मगर सबको पेनफुल कंडीशन ही रहता है. सबको मालूम रहता है पेन है तो आर्थराइटिस है. सो ऑल पेन्स आर नॉट आर्थराइटिस, सो विच इज़ हैविंग सिग्निफिकेंट जॉइंट में कुछ इन्फ्लेमेशंस और इन्फेक्शन के वजह से मॉडिफिकेशन होता है ना, उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं. एंड आर्थराइटिस इज नॉट एन क्यूरेबल डिसीज. अभी क्या है, एक जख्म आया, एक फीवर आया, कुछ और डिसीज है तो उसको हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं. नेक्स्ट एपिसोड आया था ही विल बी आउट ऑफ दैट डिसीज. मगर आर्थराइटिस में इट इज नॉट आउट ऑफ द डिसीज, ही हैज टू लिव विद द डिसीज विदाउट एनी सफरिंग्स. सो दैट इज एन इंटेंशन ऑफ ट्रीटिंग द आर्थराइटिस. उसका हिसाब से देखा तो लाइक एट प्रेजेंट हमको इसका परमानेंट सोल्यूशन का कुछ मेडिसिन नहीं है मेडिकल सिस्टम में. सो हम आर्थराइटिस आया, कुछ कोर्स के लिए 3 महीने किया, 6 महीने किया, आर्थराइटिस एराडिकेट हो जाएगा बॉडी से, ऐसा नहीं होगा. सो इट हैज़ टू बी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं. सो कब आप प्रॉपरली लाइफस्टाइल को आर्थराइटिस का पॉजिटिव पेन मैनेजमेंट किया तो ठीक रहता है, फिर वापस आ जाएगा. सो इसका क्या सोल्यूशन है? सो वन थिंग वी हैव टू मेक ए माइंड दैट सो वी हैव टू लिव विद आर्थराइटिस. उसको हम अपना मित्र बनाना है. सो इट शुड नॉट गेट अफेक्टेड. सो उसको क्या क्या करना है. सो एंड कुछ भी हमने ट्रीटमेंट किया तो इसका साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में नहीं होना है. आपने सुना रहेगा कुछ पेन किलर्स हमने खा लिया, गैस्ट्राइटिस हो गया, थोड़ा लॉन्ग टर्म खा लिया, लिवर के ऊपर प्रॉब्लम हो गया, फैटी लिवर हो गया, लिवर का सिक्रेशन चेंज हो गया, और तो कुछ ज़्यादा दिन ले लिया, अनप्रिस्क्राइब मेडिसिन हमने खाना शुरू कर दिया तो किडनी के ऊपर प्रॉब्लम करता है. ये जनरली हम सब लोगों को पता है, क्योंकि
So painkillers are not a solution for arthritis. It has to heal from the inside. क्या होता है आपका घुटनों का दर्द रहता है ना, so it has to heal. कि घुटनों का दर्द क्यों हुआ है उसका पॉजिटिव फैक्टर हमने एड्रेस किया तो डेफिनेटली इट विल वर्क ऑन पेन मैनेजमेंट. सो उसके हिसाब से हमने आयुर्वेदा में उसका ऑलरेडी संधिवात का ट्रीटमेंट रहता है, उसका मेडिसिन भी बताया रहेगा विच इज़ लॉन्ग टर्म यूसेज रहता है एंड इट इज़ नॉट हैविंग एनी साइड इफेक्ट्स. उसको हमने मायने रख के हमारा डॉक्टर टीम रिसर्च टीम क्या किया, एक फॉर्मुलेशन बनाया. सो हाउ इट इज़ वर्किंग ऑन दिस आर्थराइटिस, वो सब मिला के उसके साथ बूम फ्रूट बोलते हैं ना, नोनी फ्रूट्स, उसका जूसेस के साथ हमने आयुर्वेदिक का कॉम्पोजिशन बना के एक ब्लेंडेड परफेक्ट मेडिसिन फॉर आर्थराइटिस बनाया. सो इसका एक ब्यूटी क्या है, इट इज़ नॉट ओनली वर्किंग ऑन पेन, इट वर्क ऑन द कॉस्ट इफेक्ट्स. व्हाट आई सेड, सो अभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के लिए एक रीजन रहता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, इसका पैथोलॉजी डिफरेंट रहता है, उसके ऑन बेसिस हाउ इट इज़ वर्किंग, सो इट इज़ डिजाइन. एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, उसमें क्या कमी रहता है, किसके लिए इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, वो पॉजिटिव फैक्टर को भी ये वर्क करता है. सो इट इज़ टोटली लाइक divided in like too many of arthritis, how it is working. The causative factor to create the arthritis is inflammation basically, and कुछ oxidative stress बोलते हैं मेडिकल टर्म से. सो इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा कराने के लिए वो causative factors को ये खत्म करते हैं. सो when you don't have the causative to create the disease will be managed well. So this is the intention of the Ayurveda approach with arthritis. इसीलिए हमको ये साइड इफेक्ट भी नहीं रहता है एंड यू हैव अ स्टेबिलिटी रिजल्ट्स. लाइक अभी क्या होता है, उसको लेते रहते हैं तो सो इट विल रिड्यूसेस द सफरिंग्स एंड इट विल नॉट अलाउइंग यू टू रिकवर और प्रोग्रेस नहीं होता है डिसीज. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेडिसिन. इसके लिए हम ऑलरेडी वी आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, पेशेंट को देखते अराउंड 8-10 साल से हम दे रहे थे. सो क्लिनिकली वी हैव अ सक्सेस रेट, बट वी वांट टू सी विथ clinical trials. Usually it is not a mandatory to Ayurvedic medicines to get done the clinical trial. With the intention of and good cause, our company has started to do the clinical trial on this. So we selected only 3 arthritis which is mainly suffering to the society. One is rheumatoid arthritis, next one is osteoarthritis and gout. So सबको पता है rheumatoid arthritis is autoimmune disorders. इसको एज लिमिट रहता है, 8 साल का बच्चों को भी आ सकता है और 80 इयर्स ओल्ड बुजुर्ग लोगों को भी आ सकता है. सो दिस इज द वन थिंग वी कंसिडर बिकॉज इट इज एन सफरिंग आर्थराइटिस. नेक्स्ट वन गाउट, आप बोलते रहते हैं यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हो गया है, तो टोक को पेन होता है, शाम को होने के बाद दर्द ज़्यादा होता है. तो ये काइंड ऑफ आर्थराइटिस. और ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको वयोसहज से होता है ना, लाइक आफ्टर 40 वियर एंड टियर ऑफ द जॉइंट्स. तो उसके ऊपर भी हमने we want to try this one, how it is effective. And it was conducted by our Dr. Venkatesh sir, leader. So clinical research under the CTRI registry. So clinical trial registry of India का guidelines के हिसाब से हमने करना पड़ता है. So totally double blinded रहता है. उसका क्या है, हम स्पॉन्सर बोलते हैं ना, कौन मेडिसिन दिया है उनको भी पता नहीं रहता है कौन से पेशेंट को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पेशेंट को भी पता नहीं रहता. इट इज ऑल ब्लाइंडेड. सो उनको पेशेंट को भी एक मेडिसिन ले रहे हैं हम पेन के लिए और आर्थराइटिस के लिए पता रहता है, क्या मेडिसिन ले रहे हैं उसको नहीं रहता है. सो आई थिंक डॉक्टर वेंकटेश विल एक्सप्लेन ऑन दोज थिंग्स क्राइटेरिया एंड आउटकम आफ्टर 6 months. सो वी डिड 3 groups, 40 people in each. Total 120 people are enrolled with the inclusion criteria and exclusion criteria. किसको लेना है, क्या लेना है, वो गाइडेंस रहता है मेडिकल के हिसाब से, उसमें लिया. तो सो वी आर मोरली फोकस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. वन, पेन कितना कम होता है ऑल 3 आर्थराइटिस में. एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस में कुछ बोन मिनरल डेंसिटी देखते हैं, क्योंकि वो बोन का डेंसिटी कम होते उसका इन्फ्लेमेशन बढ़ता रहता है ना. बोन मिनरल डेंसिटी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस का लेवल कितना है, डेंसिटी कितना रहता है बोन का, वो सब का बायोमार्कर्स रहते हैं. सीरम कैल्शियम कितना इम्प्रूव हुआ है, बोन डेंसिटी कितना है, ESR पैटर्न कितना है. इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कुछ बायोमार्कर्स होते हैं, लाइक कौन सा इन्फ्लेमेशन से, ESR, CRP, ऐसा कुछ
इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाला और ये वाला बायोमार्कर्स रहता है। अब बायोमार्कर्स को हमने चेक किया इनिशियल स्टेज ऑफ स्टडीज एंड एंड ऑफ द स्टडी। एंड गॉट आफ्टर टेस्ट में यूरिक एसिड लेवल पता ही है सबको, कितना ज़्यादा रहता है कितना कम हो रहा है। सो अलॉन्ग विथ पेन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ वी वांट टू सी द चेंजेस इन दिस रिजल्ट एंड आउटकम आगे देखेंगे क्या हुआ है। सो वी गॉट अ फैंटास्टिक रिजल्ट विच was like surprising to everyone. Even though I have discussed with my colleagues with the allopathy doctor, so I have shown that these are the results we got it, and they said that oh, it's very good because rheumatoid arthritis में क्या होता है, so it is like fluctuating. एक 15 दिन आदमी अच्छा रहता है, फिर 15 दिन में उनका बायोमार्कर्स ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस के फैक्टर, फूड, एवरीथिंग। बट हियर 6 मंथ हमने ट्राई किया, देयर इज नो फ्लक्चुएशंस, इट्स कीप ऑन रिड्यूसिंग। सो स्टेबिलिटी है डिसीज मैनेजमेंट में, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है 6 मंथ में एक महीना ज़्यादा हुआ है, दूसरा महीने कम हुआ है, तीसरा महीने ज़्यादा हुआ, आउटकम ऐसा नहीं है। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम द हाई पीक लेवल टू लो पीक लेवल विद द stable variety. So that is what exactly we needed in arthritis. So that has to progressive success हमको चाहिए. And of course it is a long term treatment. We need to give up to 3 to 6 months minimum. So fantastically आया है results and as a doctor हमको भी एक confidence आता है, कुछ मैनेजमेंट डिसीज को हम कर सकते हैं, उसके लिए हमारा एक मेडिसिन इफेक्टिव है। सो वी आर सेइंग क्लिनिकल एवरी डे, तो क्वालिटी आता है। 1-2 महीने में आके बोलते हैं सर मेरे को ऐसा नहीं हुआ था, बैठने के लिए नहीं होता था, स्टिफनेस ज़्यादा था, अभी कम हो रहा है। सो 30 to 40% रिड्यूस। सो इट्स कीप ऑन मूविंग। उसके साथ साथ हम उनको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, फूड और एक्सरसाइज भी बताते हैं। सो दैट इज ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स। सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं लाइक आर्थराइटिस नाउ इट कैन बी मैनेज वेल, so and need not worry about the arthritis. Hopefully everybody should get rid of this arthritis and we should control it and whatever the seeing we are growth. So once like अभी हमको मालूम हो रहा है like more than 210 millions in Indians are suffering with arthritis. So that we will going to reduce it with these kind of things and hopefully everybody should live the without painful life and everybody should be happy. Thank you. Live long and live strong is our goal.